Good evening, everybody. I'm Sudesh and I work for the Azim Premji Foundation. A very warm welcome to all of you on behalf of Azim Premji University, which is an integral part of the Azim Premji Foundation. And we are delighted to be presenting today's program to the public of Bhopal, the second program this year in our series of public lectures here. We have a full house pretty much, and I know many of you have come from far. And I know all of you are here because you believe in the key role of a teacher and because you are well-wishers of the Azim Premji University. So thank you very much. Before we start, a few points about our public lectures. The Azim Premji University started in Bangalore in 2010. And we have been holding these public lectures in Bangalore ever since, perhaps about 6 to 8 a year. We thought we should expand our footprint and host these lectures in cities where we are setting up our universities. And therefore, we have come to Bhopal, where our second university starts operations this academic year. Public lectures are one way by which we realize the foundation's vision of a just, equitable, humane and sustainable society. We invite public intellectuals across various spheres of life to speak to the public from our platform. In the past, we have hosted, among others, Professor Manjul Bhargava, Fields Medal winner from Princeton, Professor Joseph Stiglitz, Nobel laureate in economics from Columbia, and Professor Mahesh Rangarajan, Rhodes Scholar and Professor at Ashoka. A bit about the program this evening. Soon after this introduction, Professor Anil Gupta will deliver his talk for about 45 to 50 minutes and then interact with you, the audience, for about 20-25 minutes. My colleague Naveen, who is the registrar of our Azim Premji University here in Bhopal, will conclude the evening with a vote of thanks around 6 p.m. We request you to stay back for light refreshments and fellowship that have been organized after the event. And before you leave, we invite you to view our publications and pick up some complimentary brochures about the programs offered by our university, particularly so here in Bhopal. And finally, we promise to bring these public lectures to you regularly from now on, perhaps once every 3 months, and we request you to patronize us by attending them. We will offer these lectures both in English and in Hindi. I know many of you would want to know more about our university. Several of my colleagues from Bhopal are here, and you are most welcome to reach out to us, and we will be happy to be talking to you. A brief introduction to the speaker of this evening, Professor Anil Gupta. Professor Anil Gupta is a visiting faculty member at Indian Institute of Management, Ahmedabad, after having taught there for 4 decades. He is also the founder of several key initiatives, including the Honeybee Network, the National Innovation Foundation, and the Society for Research and Initiatives for Sustainable Technologies and Institutions, also called Srishti. He is a renowned educator, known for his Shodhyatras across the country, an original thinker, and a recipient of one of our highest civilian awards, the Padma Shri. I now invite Professor Anil Gupta to deliver his talk on Towards a Compassionate, Creative, and a Collaborative Teacher. Sir. धन्यवाद, नमस्कार साथियों। अध्यापक में करुणा होनी आवश्यक है। उसके बिना वो स्वयं सीख नहीं पाता, दूसरों को तो क्या सिखाएगा। सृजनशीलता कई तरह की होती है, मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। और ख़ास तौर से वो सृजनशीलता जो हमें किसी एक विषय में पारंगत करती है, लेकिन बाकी विषयों में बड़ा साधारण बना देती है। एंगुलर एक्सीलेंस जिसको मैं बोलता हूँ, उसकी जगह बनाने की ज़रूरत है। और मैं आज कहूँगा आप सबसे कि थोड़ा सोचिएगा कि उन बच्चों का क्या किया जाए जो सभी विषयों में अच्छे नहीं हैं, और वो जानते हैं इस बात को और हम भी जानते हैं इस बात को, और इसके बावजूद
उनके माँ बाप, उनके अध्यापक, उनके सहयोगी उनको बताते हैं इस बात पर कि वो सभी विषयों में क्यों नहीं रुचि लेते। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं इस दुनिया में, खास तौर से अध्ययन के क्षेत्रों में, वो उन लोगों ने की हैं जो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखते हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता। आपको मालूम है ना, जब द्रोणाचार्य ने कहा पांचों को कि जरा देखो तो सही, बताओ, तो भीष्म ने कहा कि सारी दुनिया दिख रही है मुझे, उसका ये जमीन हिस्सा है, उसमें ये पेड़ पौधा, चले जाओ, तुम कभी धनुर्धर नहीं बनोगे। तो कुछ लोग भीष्म जैसे होते हैं जो सभी को जोड़कर एक साथ देख पाते हैं, और हमें भीष्म और अर्जुन दोनों चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में भीष्म के लिए जगह है, अर्जुन के लिए नहीं। ये बड़ी दुविधा की बात है। सब जानते हैं अर्जुन का योगदान, उसकी योग्यता, उसकी साधन, उसका एक चित होना, लेकिन हम एक अध्यापक के तौर पे क्या कर पाएंगे ऐसे बच्चों के लिए, इसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। और सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक सभी विषयों में स्वयं प्रश्नों का उत्तर कर पाए, ये संभव नहीं है। तो आपको 4 बतख दिख रही है जो एक दिशा में जा रही हैं, लेकिन एक मेरी सबसे प्रिय है, वो उल्टी दिशा में जा रही है, और मुझे उस बतख के बारे में आज बात करनी है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर एक खोज करने की प्रवृत्ति है। शी कैन डिफाई द ट्रेंड। और डिसेंट एंड डाइवर्सिटी जो कहते हैं कि अनेकता बहुत ज़रूरी है हमारे विचारों में। एक रूपता जो है वो न देश को जिंदा रख पाएगी, न समाज को। विभिन्नता बहुत आवश्यक है रचनात्मकता के लिए, सृजनात्मकता के लिए। और एक अलग जगह पे खड़े होकर अपनी बात कह पाना, ये उन लोगों का काम है जो हमको नेतृत्व प्रदान करते हैं। पीछे तो कोई भी चल सकता है। तो इसी के साथ एक प्रश्न उठता है कि क्या अध्यापक, खास तौर से अध्यापक, लेकिन हम सबके लिए जरूरी है कि हमारी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हम सब हिपोक्रेट हैं, थोड़ी तो दोगलापन हम सब में है, मुझमें भी है। कितना है ये सिर्फ एक मात्रा का प्रश्न है। उसको कम कर पाए तो हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, हमारी बात का असर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हम लेट के अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चों को बोलते हैं सीधा बैठ के पढ़ो, बच्चे समझ जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती। ये दुनिया ऐसे चलती है जिसमें कहते कुछ ना करते कुछ। तो बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे व्यवहार को मत देखना, हमारी बातों को सुनना। वो कहते हैं नहीं, हम आपके व्यवहार को देखेंगे, आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। विरोधाभास पैदा हो जाता है। लेकिन ये विरोधाभास जो है, इसके मैं आगे डेवलप करूंगा। पैराडॉक्सिकल थिंकिंग जो है, जो विरोधाभास है किसी भी बात के अंदर, किसी भी व्यवहार के अंदर, उसको आधार बनाया जाए शिक्षा के अंदर नए नए प्रयोग करने का, ऐसा मेरा मानना है। विरोधाभास कोई गलत चीज़ नहीं, कोई कमी चीज़ नहीं, कोई बात नहीं है। विरोधाभास तो ताकत देता है हमें इस बात की कि हम एक पक्ष की बजाय कई पक्षों के साथ देखें और उनको आगे बढ़ा पाएं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा परिभाषा बहुत संक्षेप में कि 3 गुण जो हम देखना चाह रहे हैं अध्यापक में। एक तो है जिज्ञासा, और जिज्ञासा के लिए विस्मय बड़ा जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि 24 घंटे में जब एक भी क्षण ऐसा ना आए जब आप कहें अरे ऐसा कैसे, तो आप जिंदा तो रहे, लेकिन आप जिजीविषा आपकी जीवित नहीं थी, आप जीवंत नहीं थे, जिंदा थे। If you are not surprised at least once in 24 hours, you have not lived, you have just existed. ऐसा मेरा आग्रह है। और ये एक पैमाना भी है जिससे हम नाप सकते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं। जिस दिन विस्मय नहीं हुआ उस दिन कुछ नहीं सीखा, कुछ आए नहीं जब हम कह सकते कि नहीं ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था, कभी ऐसा आभास हुआ ही नहीं मन गया था। तो इसलिए ये एक आवश्यक कंडीशन है, एक आवश्यक शर्त है एक शिक्षक को जिज्ञासा को प्रबल करने के लिए कि वो एक क्षण को 24 घंटे में ऐसा अपने अंदर ले पाए। और कक्षा के अंदर यदि उसको ऐसा क्षण नहीं आया तो इसका मतलब विद्यार्थी जिनको पढ़ा रहा है उनकी भी जिज्ञासा ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। मेरी जिज्ञासा शांत है तो मैं बच्चों की भूख कैसे पैदा करूँगा? ये माँ बाप के लिए भी आवश्यक है, ये हर घर के लिए आवश्यक है।
हर घर में एक क्षण ऐसा आना चाहिए जब चर्चा इस बात की हो, सब मिलकर कहें कि कहाँ से कौन किसको सिखा रहा है पता नहीं चल रहा है, टीचर कौन है और विद्यार्थी कौन है। ये ऐसा ऐसा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा है कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी करुणा किसके प्रति हो, तो सबसे पहले मैं कहूँगा उसके प्रति जिसको ना हम जानते हैं ना जान सकते हैं, परफेक्ट स्ट्रेंजर। कौन है परफेक्ट स्ट्रेंजर? ऐसा जिसको हम जानते नहीं हैं और जान नहीं सकते। बताइए भैया। परफेक्ट स्ट्रेंजर जिसके मन को टटोलना संभव ही नहीं है, जो आपसे इंटरेक्ट ना करे, बात ना करे। नहीं, लेकिन संभव तो है ना। जो व्यक्ति या समाज में उपस्थित है, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, संभव तो है, लेकिन जो अभी तक पैदा नहीं हुआ उसके विचार को कैसे जाने, उसके प्रति जिम्मेदारी का भाव, ये करुणा की पराकाष्ठा है जिसमें हम आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। चाहे वो पर्यावरण का प्रश्न हो, चाहे सामाजिक संबंधों का प्रश्न हो, चाहे क्या हम किस तरह की दुनिया उनके लिए बनाना का चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उसका प्रश्न हो, दूरदृष्टि का प्रश्न हो। कितनी दूर की बात सोचें, वहां तक की बात सोचें, कम से कम 2 पीढ़ी की बात तो सोचिए। पिछले 100 साल से अगले 100 साल की यात्रा, हम लोग शोध यात्रा में अक्सर कहा करते हैं कि 200 साल की यात्रा है। और करुणा के लिए जरूरी नहीं कि हम जानते हो कि किस पर हमारे व्यवहार का असर पड़ेगा। 4 बातें, 4 शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा जिससे अक्सर हम अपने विकास को नाप सकते हैं। व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार। 90% समय हमारा व्यक्तियों की चर्चा में जाता है, आप मानेंगे। इसने ये कहा, उसने ये कहा। कुछ समय विचारों में जाता है, विचार को व्यवहार में लाने में बहुत कम समय जाता है। हम बहस नहीं करते हैं, अगर बहस करें तो बहुत रोचक बहस होगी कि कौन से विचार को व्यवहार में लाना है और कौन से विचार को नहीं लाना, और किसने कौन लाया और कौन नहीं लाया, इस पर अच्छी बहस हो सकती है। और जब एक व्यवहार स्वयं संचालित हो जाए, यानी कि डिफॉल्ट कंडीशन बन जाए हमारे दिमाग की, तो वो संस्कार है। सोचना ना पड़े, अपने आप ही स्वतः ही वो बात है, सेल्फ गवर्न रूल, मैटर रूल बन जाए दिमाग के अंदर, अंतर्निहित हो जाए वो बात। बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षा में उतनी गहराई ला पाएँ कि जब जो व्यक्ति है वो विचार, व्यवहार और संस्कार की सीढ़ियों पर चढ़ पाए। सहयोग के अंदर मैंने एक खो-खो का मॉडल बनाया। खो-खो के खेल आप जानते हैं। अब खो-खो में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अकेला जीत नहीं सकता, है ना। आपको दूसरे को खो देनी होती है। और वही सहयोग की भावना है कि जिसमें हम ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं शिक्षा का, जिसमें अकेले हम सीख ही ना पाए ज़्यादा, हमको दूसरे के साथ सहयोग करना ही पड़े। और वो सहयोग कई तरह का हो सकता है। वो सहयोग हो सकता है कि जैसे एक हमारा विद्यार्थी है रवि, तो पहले वो खान मार्केट में रहता था दिल्ली में, तो उसने क्या किया कि आसपास के जो विद्यार्थी थे, जो नौकरी करते थे, सफाई करते थे, कर्मचारी थे अलग अलग घरों के, उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमारे स्कूल तक 1992 मंजिल नाम की संस्था है, मंजिल टॉप, और इतने साधन नहीं थे उसके पास के सारे टीचर रख सके। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, 7वीं के बच्चे 6वीं को पढ़ाएंगे, 6वीं के बच्चे 5वीं को पढ़ाएंगे, 5वीं के बच्चे 3वीं को पढ़ाएंगे। कितना बढ़िया मौजूद बन गया। अब जब पढ़ाते हैं तो सीखते भी हैं। मुझसे कई बार पूछे थे, अभी आपने सवाल किया इतने कोर्स क्यों पढ़ाते, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो पढ़ूंगा नहीं। मैंने देखा ये बात, अगर किसी भी एक विषय को मैंने पढ़ाना बंद कर दिया तो मैंने उसके बारे में उतना गहराई से पढ़ना भी बंद कर दिया। ये सच्ची बात है, मैं आपसे ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। इसलिए लगातार पढ़ते रहने के लिए, अपने आप को तैयार रखने के लिए, विषय के बारे में ऐश पे रखने के लिए पढ़ाना भी जरूरी है। तो बच्चों ने देखा जब वो पढ़ाते थे तो वो सीख भी जाते थे। इतना अच्छा तरीका है पढ़ाने की शिक्षा का कि जिसमें अध्यापक का जोर कम हो जाता, का बोझा कम हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके
बारे में हम सीखें कि जब तक हम शेयर नहीं करते, हम बांटते नहीं हैं, तो हम सीखते भी नहीं हैं। मैंने कहा इस बात को। अब एक दिक्कत बहुत बड़ी है हमारे सबके साथ है, हमारी संस्कृति में ये कमी है थोड़ी सी, तो हम सबको अपनी बात की हामी बनवानी पड़ती है। तो भाई ठीक कह रहा हूँ ना मैं, ऐसे बोलते हैं है ना, हमारा लहजा है, ठीक है ना भाई। तो मतलब हमको जब तक 2-4 लोग कहना दें कि ये सही है, संतोष ही नहीं मिलता। अगर मान लीजिए सबने कह दिया कि ठीक नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा इस बात को। इसका मतलब ये जो नीड फॉर अफर्मेशन है कि सबसे अप्रूवल चाहिए, सबकी सहमति चाहिए, मुझे अपनी बात को, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, और मैं कई बार दूसरों को मजबूर भी कर देता हूँ, उसको गलत झूठ में भी कहना पड़ता है, हाँ हाँ ठीक है, तो सारा संवाद ही दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। मुझे लगता है इस बात को हमें सोचना चाहिए, हमारी संस्कृति की इस कमी को दूर करना चाहिए। अगर बाकी लोग नहीं है सहमत तो भी कोई बात नहीं। मैं सन 69 में जब विद्यार्थी था, सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, तो एक मैंने उद्धृत वाक्य पढ़ा जिसको मैंने पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ, हिंदी बताता हूँ। Fortitude is the capacity to say no when the world wants to hear yes. ये मैंने अपनी टेबल पे लगा लिया। तो सारी दुनिया सहमति मांगती है, आप असहमत हो सकते हैं, ये शक्ति कैसे पाई जाए। रोज पढ़ता था इस वाक्य को, मेरा व्यक्तित्व बदल गया। ताकत आ गई कि भाई अगर कोई ना भी माने और शर्त ये हो कि सबकी सहमति की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है, तो मत मानने दो यार, जो कहना है भाई कहना है। अकेले चलेंगे तो चलेंगे, तो वो क्षमता पैदा कर पाए हम अपने बच्चों में कि वो अपनी बात को कहने के लिए सामर्थ्य पैदा कर पाए अंदर से, तभी तो विलक्षणता पैदा होगी, तभी तो एक्सीलेंस आएगी, तभी तो हम लोग समाज के अंदर ऐसे नेतृत्व का विकास कर पाएंगे जो अपनी जगह खुद बनाएगा। तो मैंने कहा कि जैसे एंगुलर एक्सीलेंस की बात इस तरीके से, ये इसमें एक प्रश्न बड़ा साधारण सा है लेकिन बड़ा आवश्यक है कि कई बार अगर सब विषयों में हम अच्छे नहीं हैं तो उसकी जगह कैसे बनाएं। मेरे हायर सेकेंडरी में मैथ साइंस में बहुत अच्छे नंबर थे, मैथ में 5 नंबर से डिस्टिंक्शन रह गई थी। उस जमाने में डिस्टिंक्शन काफ़ी मायने रखते, आजकल सबके 90%, 98% नंबर आते हैं, उस जमाने में नहीं आते थे। तो लेकिन मेरे अंग्रेजी में बहुत कम नंबर थे, सिर्फ 40%, ड्राइंग में भी 35-40% पास मार्क्स थे सिर्फ। अब क्या हुआ कि मेरे जो अध्यापक थे इंग्लिश के, मिस्टर शर्मा, अनिल शर्मा, वो मैं कापी लेके जाता था स्कूल के अंदर, तो वो उस पर काटा मारते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था एक कुंजी है जिसमें से देख के लिखना है। मैं अपने आप लिखने की कोशिश करता था, गलतियां ज्यादा होती। दरअसल उनका रास्ता सही था नंबर लाने के लिए। ये साबित हुआ कि मैंने लेकिन मैंने अपनी बात कहने का तरीका सीख लिया। मैंने सीखा बहुत मेहनत, बहुत नंबर गंवाकर, बहुत जिंदगी की जहर को बढ़ाकर, कि अगर अपने विचार अपनी तरह से कहने हैं तो नकल नहीं करनी, किसी की बात दूसरी बात को अपनी बात नहीं कहना है। बहुत महंगा पड़ा वो, 58% सेकेंड डिवीजन रहती है तो बैडमिंटन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और वो लंबी कहानी है, लेकिन सच बात यह है कि बड़ी मुश्किल से मुझे ग्रेजुएशन मिला। लेकिन उस चोट से एक बात सीखी कि अगर मैं कुछ विषय में अच्छा भी था और बहुत अच्छा था, और कुछ विषय में बहुत खराब था, तो ये सही है ना, ऐसा एक साधारण व्यक्ति हो सकता है ना, ये शर्त क्यों होनी चाहिए। अब ये बड़ा नीति का प्रश्न है, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा नीति को तो मैं नहीं बदल सकता हूँ और आप भी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर ऐसे बच्चे मिलें उनको आगे बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसे गुरु मिलते चले गए रास्ते में, हर कदम पर, जिनको लगा यार जो चीज में ये कहता है अपनी बात को, उसी बात में ध्यान देते हैं, तो बाकी बात छोड़ देते हैं। मेरी बहुत खराब थी, कोई बात नहीं, चलो हम करेक्ट कर देंगे, प्रूफ रीडिंग कर देंगे। हमारे प्रोफेसर ने काफी काम किया इसके लिए, थीसिस के लिए, लेकिन बाकी विषय में सोचने की क्षमता है। आज आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी के बिना बहुत सारे मौके सिर्फ इसलिए छूट जाते हैं युवा लोगों से क्योंकि उनको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। आज हर गांव में जाइए, हम शोधयात्रा से भी आ रहे हैं, बलिया से गाजीपुर गए थे 49वीं शोधयात्रा में, अंग्रेजी का स्कूल, चाहे वो स्पेलिंग गलत हो उसके अंदर, लेकिन आज सब माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजना चाहते हैं।
क्षेत्रीय भाषाओं की कोई आज पूछ नहीं है। और ये दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बात कही गई है कि सभी को अपनी भाषा में 8वीं 7वीं तक या 8वीं तक तो पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी, बहुत सार्थक प्रयास है। इसमें हम उन बच्चों को भी साथ में ले पाएंगे जो अंग्रेजी की वजह से पीछे पड़े। अंग्रेजी जानना या ना जानना किसी की काबिलियत की निशानी नहीं हो सकती। तो कैसे उनको बढ़ाया जाए, ये प्रश्न है। मेरा मानना है कि जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं लेकिन जिसको हम ध्यान नहीं रखते, जिसको हम मॉनिटर नहीं करते, जिसकी हम पड़ताल नहीं करते, इसका मतलब उस परिवर्तन को हम चाहते हैं। change not monitored, change not planned, ऐसा मेरा मानना है। इस पर मेरी बहुत बहस हुई थी एक बार जब डॉक्टर आई पटेल हमारे यहाँ थे 1984 में, और उन्होंने उस लाइन को पकड़ लिया मेरे पेपर में और बोले कि भाई मुझे से बहस करो, थोड़ी देर मुझे कन्विंस करो कि ये बात सही है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग चाहते कुछ हैं, नापते कुछ हैं, ये ऐसी बात है। मैं अपने जब टीचर से मिलता हूँ तो पूछता हूँ भाई ऐसे सवाल बताओ जिसका तुम जवाब नहीं दे पाए। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं एक महिला ग्राम विद्यापीठ नदीपुर में महसाना के पास वहाँ गया था। तो बच्चियों का स्कूल है वो, तो बच्चियों से मैंने वैसे ही पूछ लिया कौतूहलवश, मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका मुझे जवाब नहीं आता। अब बच्चों को क्या मालूम मुझे क्या नहीं आता, लेकिन बस माहौल को हल्का करने के लिए मैंने कहा कि एक बच्ची बड़ी चालाक थी। बोली तो ऐसा है कि यहाँ रखी है चीनी और यहाँ रखा है गुड़। चीनी में लाल चींटी आती है, गुड़ में काला मकोड़ा आता है, क्यों? अरे बाप रे बाप, वो तो सवाल बड़ा जबरदस्त था और सही था। आप लोगों ने कई बार देखा होगा रसोई में, लेकिन उस बच्ची की कल्पनाशीलता को देखिए, उसकी हिम्मत को देखिए, उसकी जिज्ञासा को देखिए। तो मैंने कहा हाँ, उसमें कुछ सूंघने के पदार्थ होते हैं चींटी के अंदर, उसमें अलग गंध है, इसमें अलग गंध है, फिरोमोन्स का मामला है। लेकिन सच्ची बात ये थी कि वो सवाल बहुत बढ़िया था, गजब का था। और फिर मैं बच्चों से कहा कि और सवाल ऐसे पूछो तो कम से कम मुझे आज रात को नींद नहीं आएगी। अब अगर मान लीजिए कि जवाब नहीं है मालूम, तो कहने में दिक्कत क्या है इस बात को कि नहीं मालूम। तो जो फैलिबिलिटी है कि हम गलत हो सकते हैं, हम अनभिज्ञ हो सकते हैं एक विषय से, ये मानने में हमें संकोच क्यों होता है? हर अध्यापक को मुझे लगता है साल में 3 महीने में लिखना चाहिए कागज पर एक पेज में कि वो प्रश्न जिनका मैं सही संतोषजनक उत्तर उस दिन न दे पाया जिस दिन क्लास में पढ़ा। तो आप देखिए कि सिर्फ एक प्रश्न को परिवर्तित करके हम पूरी शिक्षा की जो विधा है उसको बदल देंगे। द होल पेडागॉजी विल चेंज, विल बिकम मोर ऑनेस्ट, मोर ऑथेंटिक, मोर रिस्पॉन्सिव, मोर क्यूरियस। हम लोग जिज्ञासा बढ़ जाएगी, सच्चाई बढ़ जाएगी, एक बराबरी का माहौल आ जाएगा क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है बच्चे सोचेंगे हर चीज ज़्यादा जानते, कुछ विषय में से आगे। एक बार 2018 की बात है, मैंने बच्चों से कहा कि हम लोग जाते हैं शोध्ययात्रा में और स्कूलों में रुकते हैं अक्सर सरकारी स्कूलों में, तो हम वहाँ देते क्या हैं? देते तो कुछ नहीं है, उनकी आवभगत लेते हैं। इस बार ऐसा करते हैं कि कुछ तैयारी करो तुम लोग। तो हमने 1 से 12 क्लास के सभी विषय के सभी टॉपिक का एक स्प्रेडशीट बनाई। एक बच्चा था थोड़ा शैतानी करता था, उसको मैंने पनिशमेंट असाइनमेंट दी थी। तो 2018 की बात है। अब वो स्प्रेडशीट बन गई हमारे पास। वो स्प्रेडशीट हमने बांट दी, हमने कहा इसके अंदर कंटेंट डालो। कंटेंट भी चला गया। अब एक दिन मैं क्लास में आया, मेरा कोर्स चल रहा था सेकेंड ईयर का, मैंने पूछा भाई बच्चे ये बताओ हमारे पास कंटेंट तैयार हो गया है, हमें स्कूल में जाना है सितंबर में, देना है, लेकिन कंप्यूटर तो होंगे नहीं स्कूल में, कैसे देंगे? एक विद्यार्थी बोलता है MBA का, सर आपको OTG केबल नहीं मालूम? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम OTG केबल क्या होता है, आपको तो पता होगा। एक साइड में USB, एक साइड में माइक्रो USB। तो बोला टीचर के पास तो स्मार्टफोन होगा ना? मैंने कहा हाँ होगा। तो बोले सर एक साइड में वो फोन के अंदर आप पेन ड्राइव पे ले जाइए मटेरियल, पेन ड्राइव बांध देना 1 से 8 तक, 9 से 8 से 8, 9, 10 और 11, 12 3 पेन ड्राइव ले जाइए। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग क्लासेस होती हैं, आराम से पढ़ जाएगा आपका कंटेंट, समस्या हल हो गई। अब अगर मैं नहीं बताऊं बच्चों को कि मुझे नहीं मालूम इस समस्या का उत्तर, तो मुझे उत्तर मिलेगा कैसे?
मैं क्यों मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा, और मेरी शर्म, मेरी इज्जत कम थोड़ी हुई इससे। मेरा काम अच्छा हो गया, सवाल का समाधान मिल गया, हमने वो कर डाला उस साल, अलग अलग पेन ड्राइव में ले गए। पहले हम मेघालय गए थे तो हार्ड डिस्क लेके गए थे, 4-5 हज़ार रुपये की हार्ड डिस्क आती थी उस समय, 1 टेराबाइट की। अब तो हमारा काम सस्ता हो गया, 250-300 रुपये में पेन ड्राइव आती थी। हम बांटने में थोड़ा और ज़्यादा हमारा हाथ खुल गया। हर स्कूल में हमने पेन ड्राइव बांट दी जिसमें कंटेंट था, ओपन सोर्स कंटेंट था, दे दिया कंटेंट कि भाई आप लोग बच्चों को दिखाना, जो भी उनके काम आए, अच्छी बात है। तो ये ज़रूरी है कि हम मान लें इस बात को कि सारी क्लास में एक आध बच्चा तो ज़रूर होगा जो किसी ना किसी विषय में पारंगत होगा और हमसे ज़्यादा जानता हो, ऐसा मानना चाहिए। एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, एक पूर्व विश्वास, पूर्वानुमान मैं कहूँगा हमें कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अब कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं जो हम लोगों को पूछने चाहिए कि ऐसा डेटाबेस क्यों नहीं बना अभी तक उन अध्यापकों का जो स्वस्फूर्त, स्व संचालित है, सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ गवर्नमेंट। अमेजिंग टीचर्स हमको मिले हैं पूरे देश में, सभी राज्यों में हम चल चुके हैं। डेटाबेस कुछ बनाया inshod.org पर विजय ने बनाया है हमारे यहाँ, लेकिन पूरे देश का नहीं है, लेकिन पूरे देश का बनना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक टीचर है राकेश नवदिल साहब, पंचमहल में। एक बच्चा आया, 2 बातें बताता हूँ उस स्कूल की। बोला सर आपको लाईफाई मालूम है? प्रिंसिपल से पूछता है लाईफाई मालूम है आपको? प्रिंसिपल बोला नहीं, लाईफाई क्या होता है? वाईफाई तो सुना है, लाईफाई तो नहीं सुना। मजदूर का बेटा है और वो मजदूर सारा दिन खेत में काम करता है, शाम को आकर 10वीं तक पढ़ा हुआ है, पढ़ता है, बच्चे को पढ़ाता है और पढ़ाते कहता है जाकर टीचर से पूछना। हमारी लाइब्रेरी में किताब है काउंटर कोर्स, हाउ टू आस्क क्वेश्चन व्हिच कैन सॉल्व द टीचर। जब एंग्री यूथ मूवमेंट हुआ था ना यूरोप के अंदर, तब किताब लिखी गई थी सन 60 के दशक में। ये टीचर, वो जो मजदूर था उसके पिताजी, वो बहुत मस्ती करता था, उसने बच्चों को सिखा देता। अब उसके प्रिंसिपल बोला लाईफाई क्या होता है? बोला मैं आपको दिखाऊंगा। उसने 2 पार्ट रखे और लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना, इसको लाईफाई। बहुत सस्ता तरीका है ये डेटा ट्रांसफर करने का, वाईफाई से बहुत सस्ता है। आप ऊपर लगा देंगे, यहाँ कोई बाधा नहीं आए, तो बहुत सस्ता तरीका है। सेंसर जो विजिबल लाइट के सेंसर है बहुत कम खर्च वाले वाईफाई सेंसर। प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक क्लास में बच्चे बैठे थे, टीचर कुर्सी पे बैठे थे। बोला सर आप कहते हैं समाज में न्याय होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, तो आप तो कुर्सी बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं मैट पर। उस दिन से उस स्कूल के अंदर कुर्सियां आके सब टीचर मैट पे बैठते हैं और पढ़ाते हैं। न्याय तो फिर ऐसे पढ़ाया जाएगा, हम कैसे पढ़ा सकते हैं वरना? तो वो जो ताकत है स्कूल के अंदर, बच्चों के अंदर ये ताकत पैदा करना कि वो हमारे व्यवहार के विरोधाभास को देख सकें और उसका सवाल उठा सकें, उससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ऐसे टीचर्स का डेटाबेस जो बच्चों को इतना समर्थ बना देते हैं कि वो संचालन की नीति बना सकें स्कूल की, या स्कूल की पद्धति चेंज कर सकें, मुझे लगता है बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरा आना सफल होगा जब ये काम आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात, पाठ्यक्रम के अंदर कितने सबक हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी सूझबूझ से समस्याओं का हल किया। मैंने पूरी जिंदगी लगाई है ग्रासरूट एजुकेशन के अंदर, लाखों अनुभव ढूंढे पूरे देश के अंदर, हर विषय के अंदर, कृषि में, पशुपालन में, यंत्रों में, छोटे छोटे उद्यमों में, हथकरघा में, सभी चीजों में। कितने सबक हैं? एनसीईआरटी की किताब में 4 या 5 लेसन हैं सिर्फ, केवल मात्र। अरे भैया अंग्रेजी पढ़ानी है तो अंग्रेजी के अंदर यही इन्हीं की कहानियां ले लो, इनोवेटर्स की। पढ़ाओ ग्रामर, पढ़ाओ एसे, पढ़ाओ प्रेसी, क्या दिक्कत है? इसके लिए अलग विषय बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोझा नहीं बनाना है। जो पढ़ा रहे हैं उसी में
जो उसका सामग्री है उसको बदलना है थोड़ा सा, बस। हिंदी पढ़ानी है तो हिंदी के अंदर उसको बात करो, उसी से हिंदी पढ़ा दो, क्या दिक्कत है। बंगाली पढ़ानी है तो बंगाली पढ़ाओ, मतलब भाषा को पढ़ाना है तो भाषा को पढ़ाने के लिए सामग्री इसमें से क्यों नहीं ले सकते जो रोचक भी हो, बच्चों के अंदर कौतूहल पैदा करे, थोड़ी उत्सुकता पैदा करे। कोई फंड भी नहीं है अभी हमारे यहाँ जो ऐसे अध्यापकों को समर्थ दे कि वो अगर उनकी तकनीक ऐसी है जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका कुछ गेम बना सकते हैं, उसका कुछ और कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सोशल इनोवेशन फंड फॉर एजुकेशनल इनोवेशन नहीं बनना चाहिए। एडटेक को मैं इनोवेशन नहीं मान रहा हूँ, वो डिलीवरी सिस्टम की बात है। हाईवे बना रहे हैं आप एजुकेशन, वो अलग चीज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट की बात, पेडागोजिक की बात, नए नए तरीकों की बात कर। आज से करीबन 20 साल पहले की बात, 25 साल पहले की बात है, जो राममूर्ति थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के, एक दिन बोले अनिल हमको ना, उस समय यूपीई की पॉलिसी थी ना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो बोले और वर्ल्ड बैंक से 40 करोड़ रुपया आता था जिले के लिए, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा था जो पिछले जिले के लिए। तो बोले आप हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा मैंने तो कभी शिक्षा में काम ही नहीं किया, मैं कैसे मदद करूंगा। बोले नहीं वो समझते हैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर कोई भी समस्या हल कर सकता है। एक अनुमान है, लोगों में विश्वास है। तो अब बात ये थी, उनका विश्वास को तोड़ना भी नहीं था। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप मुझे 20 टीचर के नाम बताइए, आप तो 18 साल से 15 साल से आप एजुकेशन में डिपार्टमेंट में हैं, जिन्होंने वो सब किया जो आपकी नीति में आप करना चाहते हैं, आपके बिना मदद के। बोले अनिल 18 छोड़ो, मैं 2 नाम भी नहीं बता पाऊंगा। अरे आप शिक्षा विभाग के अध्यक्ष रहे, डायरेक्टर रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरी रहे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन गए, आपको 18 टीचर 20 टीचर के नाम नहीं मालूम। ये सवाल किसी ने पूछा ही दिक्कत। तो फिर हमने कहा ऐसा करते हैं, टीचर फेडरेशन आपको मालूम है, टीचर यूनियन होती है, 1.5 लाख टीचर उसके मेंबर थे उस समय। तो हमने कहा उनकी यूनियन के ऑफिस में मीटिंग करेंगे, वहाँ बुलाते हैं, उनसे कहते हैं वो लोग बुला लेंगे। तो टीचर फेडरेशन के प्रेसिडेंट से बात हुई, उसने बुलाया। उसमें एक टीचर थी भानुमती बहन, बाकी सब आदमी थे, वो महिला थी। भानुमती बहन क्या हुआ, बोली भाई मेरे स्कूल में लड़कियां नहीं आती थी, आपको पता है ये बड़ी बड़ी दिक्कत है। तो रक्षाबंधन के दिन मैंने उनको बुलाया और सबके धागा बांध दिया। तो पुरुष बोले बहन तुमने धागे बांध दिया तो हमें कुछ देना पड़ेगा, बोलो पंखा लगवा दें स्कूल में, कूलर लगवा दें, क्या चाहिए। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो नहीं नहीं तुम जो कहोगे हम लगवा देंगे, बताओ तो सही। बहुत जिद की तो उसने बोला मैं जो चाहती हूँ तुम दे नहीं पाओगे। अब तो पुरुष का पौरुष था वो ललकार दिया एक महिला ने। अब आदमी कहाँ मानने वाले थे, ऐसा कैसे कह सकती है तुम, हम दे नहीं पाएंगे, बोलो क्या चाहिए। बोले मुझे अपनी बेटियां ले लो। 2.5 रुपए का कलेवा बांधा था उसने हाथ में से, 2.5 रुपए में उसने वो काम कर लिया, 40 करोड़ रुपए में नहीं पढ़ना। कोई बच्चे उसके स्कूल से बाहर नहीं रहे। अब ये अनुभव जो है क्यों नहीं पढ़ा सकते हम टीचर एजुकेशन के अंदर, कि यार पैसा नहीं चाहिए होता है हर समस्या को हल करने के लिए। बर्गर में हमारी शोध यात्रा थी, वहां पर एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर था, 4 ट्रांसफर हो गए थे उसके पिछले 3 साल में। तो हमने कहा बात क्या है यार। बोला सर अपने गांव में आप जाएंगे ना, मैं आपको मिलवाऊंगा 7-8 टीचरों से, 11 टीचर ऐसे जो गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं गए अपने। ऐसा क्यों। बोले सर ऐसा है कि जो बच्चे थोड़ा कमजोर थे, हमने कहा इनको गर्मी की छुट्टी में इनको पढ़ा लोगे तुम थोड़ा सा। अब देखिए सबको अपने घर जाना होता है, ये टीचर घर नहीं गए उसके कहने से, और जो बच्चे थोड़े से कमजोर थे गर्मी की छुट्टियों में उनको पढ़ाने के लिए गांव में रहे। हमने उनका सम्मान किया, गांव जाकर आंखों से आंसू आ रहे थे, और उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो ऐसे टीचर पैदा करता है। उनके अंदर अपने अंदर की जो भावना है, अंतर्निहित जो अच्छाई हम सब में होती है, हम सब के अंदर अच्छाई है ऐसा मैं मानता हूँ। सिर्फ उसको बाहर निकाल कर उसको प्रबल करना है, और हमारा व्यवहार उससे अपने आप बदल जाता है। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती इस काम में, लेकिन थोड़ी ताकत है। अब ये अनुभव कैसे आए हमारे शिक्षा क्रम में। यूनिवर्सिटी में भी आनी चाहिए जहाँ हम पढ़ाते हैं टीचर्स को बढ़ाने के लिए, और जो टीचर्स हैं उनके अनुभव में आना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग डाइट में आना चाहिए। सब जगह जो भी संस्थान हैं इसमें नहीं आ रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है, जो मेरा अनुभव रहा आपके उसके आधार पर।
और मल्टीमीडिया मल्टी लैंग्वेज डेटाबेस भी चाहिए हमको, जिसमें हम अपनी मातृभाषा में सीख पाएँ। सभी टीचर तो अंग्रेजी नहीं जानते, सभी टीचर हिंदी भी नहीं जानते, कहीं कहीं पर लोक भाषाएँ भी हैं, कहा भाषा का बोलचाल का तरीका अलग है। तो काठियावाड़ी गुजराती और सूरती गुजराती में बहुत फर्क है, कच्छी गुजराती में बहुत फर्क है। तो गुजराती का भी तो एक भाषा तो नहीं है, थोड़ा सा उस तरीके से अगर हम पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चों को बता सकें, ऐसा डेटाबेस भी बने जो डायलेक्ट के ऊपर, जो भाषा का अलग अलग लचीलापन है उसको बना सके। ऐसा डेटाबेस क्यों नहीं बनाया अभी तक? बनना चाहिए। और दूसरी बात है कि बहस करने के बाद, मैं बचपन से डिबेटर रहा, मुझे लगता है उससे मुझे बहुत लाभ मिला। तरह तरह की डिबेट, कभी कभी आपको टॉपिक 1 मिनट पहले दिया जाता है और आपको बोलना होता है उसमें, तो 1 मिनट पहले ही आपको 2 ग्रुप में बैठा दिया, अब आपको बहस करनी है। तो इससे आपकी जो सोचने की रफ्तार है और क्षमता है बहुत बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। उसमें खर्च कुछ भी नहीं है, हफ्ते में एक डिबेट कर लेना कोई बड़ा काम नहीं है, नहीं होती। लेकिन अब आप लोग जानते हैं, जो लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, कितनी डिबेट्स होती हैं, लेकिन डिबेट करने में दिक्कत क्या है? एक ही दिक्कत है इसका, एक पक्ष नहीं आएगा, कम से कम 2 आएंगे, 3 भी आ जाएं, 4 भी आ जाएं शायद। डरते क्यों है फिर इस बात से? मेरी क्लास में तो अमित शाह और मुकुल सिन्हा ने भी डिबेट की, मान सकते हैं? मुकुल सिन्हा नानावती कमीशन में एडवोकेट थे, विक्टिम्स के, और अमित शाह स्टेट होम मिनिस्टर थे। दोनों को बुलाया मैंने, बड़ी शालीनता से उन्होंने डिबेट की। क्या बुरी बात है इसमें? स्टूडेंट्स को दोनों पक्ष मिलना चाहिए। मेरा पूर्वाग्रह क्यों उनका पूर्वाग्रह बने? क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? शिक्षा नीति में कहीं नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा है कि आप विभिन्नता लाइए विचारों में, समाहित करिए विकास, ये लिखा है ना। आदिवासी और बाकी जो सीमांत अपने वर्ग है समाज के, उनकी बातों को, उनकी दिक्कतों को लाइए, ये लिखा है इस नीति के अंदर। तो कहाँ लिखा है कि हम बात नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते? नीति में तो नहीं लिखा है। आप अपने आप सोच रहे हैं, वो आपकी मत। नीति में कहीं नहीं लिखा कि हम बहस नहीं कर सकते, बल्कि लिखा है कि बहस करिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव आने चाहिए, खुला क्रिटिकल थिंकिंग का बात लिखी गई है। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पैदा होगी बहस नहीं करेंगे तो? बहुत जरूरी है। तो ये सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा जानते हैं उतना कम जानते हैं, उतनी ज़्यादा पता लगता है कि जानने का भी बहुत कुछ है। तो मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ाता इसीलिए हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ने की बहुत इच्छा है और ज़बरदस्ती पढ़ने का दबाव पढ़ाने से पड़ता है। क्लास में जाने से पहले थोड़ी नर्वसनेस आज भी होती है, और उसकी वजह से जो तैयारी आप करते हैं वो तैयारी और इसी वजह से आप करेंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी बता रहा हूँ। तो अब 3 उदाहरण देता हूँ आपको। IIT बॉम्बे में एक कोर्स पढ़ा रहा था, चक्कू है हमारा दोस्त, प्रसिद्धि के चक्रवर्ती इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, बहुत बढ़िया आदमी है, डिज़ाइन का बहुत पारंगत विशेषज्ञ भी बुलाइएगा उसके बाद। तो क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, 250 बच्चे थे, सभी अलग अलग साल के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, MS के, MDes के। मैंने बोला घर पे ठंडा खाना कौन खाता है? न्याय की बात चल रही थी, जेंडर जस्टिस की बात चल रही थी, वुमेन डिजाइन फॉर वुमेन की बात चल रही थी, महिलाओं के लिए कैसे किया जाए। हमने बोला ठंडा खाना कौन खाता है घर में? धीरे से बच्चे बोले माँ खाती है। उनका बड़ा गुनाह किया उस माँ ने, उनको पैदा किया, IIT भेजा, उसमें कोविड का टाइम था और ठंडा खाना भी खाते। तो ऐसा करो 1 हफ्ते तक उसको गर्म खाना बना के खिलाओ, और जो फोटो है पहले दिन की और आखिरी दिन की रोटी की वो भी अपलोड कर दो, और अपनी रसोई का भी माहौल अपलोड कर दो, और बताओ दिल के अंदर क्या भाव पैदा हुआ। 250 बच्चों ने अपनी माँ को खाना खिलाया, और जिस दिन लास्ट प्रेजेंटेशन होगा उस दिन संजीव कपूर को बुलाया, तुम्हारी माँ भी क्लास में इन्वाइटेड है। ऑनलाइन क्लास चल रही थी, उनकी माँ भी आई क्लास में, थोड़ा मॉरल प्रेशर डालने की कोशिश। अब बच्चा बोलता है सर वो जो चकला है ना उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, झुकना पड़ता है इस पर बेलने के लिए। अरे इतने दिन से नहीं मालूम हुआ था, IIT में आ गए, 2 साल पढ़ लिए, अब महसूस हो रहा है इतनी देर से। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस पेडागोजी। जब तक स्वयं हम उस तकलीफ को नहीं उठाएं
जो हमारी माँ बहनें हमारे घर में, हमारे आसपास हमारे बुजुर्ग उठा रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पाएंगे कई बार उन दिक्कतों के जिनके साथ हमारे समाज ने जीना सीख लिया है। कोई भी समाज प्रगति क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम दिक्कतों के साथ जीना सीख जाते हैं और उसकी वजह से परिवर्तन की धूप कम हो जाती है। We adjust and adapt rather than transient those constraints। तो हम उन मुसीबतों को, जैसे एक बच्चा बोला, सर मेरे पास एक दिक्कत आई, हमारे घर में हमारे दादा जब बिस्तर से उठते हैं तो जरा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। आप में से कई को महसूस हुआ होगा। आपको मालूम है इसका बड़ा सिंपल सा जवाब, जो एंगल है आपके एंगल, वो अगर 90 डिग्री नहीं है और एक्यूट है तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए बिस्तर को थोड़ा ऊंचा करना है। हम 20 साल तक अपने दादा, अपने पिता, अपने बाबा की दिक्कतों को देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी तकनीक इस्तेमाल नहीं करते, बिस्तर की हाइट को थोड़ा चेंज नहीं करते। अब अगर मुझे ये सिखाना है डिजाइन थिंकिंग के अंदर बच्चों को कि यार ये है डिजाइन थिंकिंग, कहीं से कहीं तक तुम ले आए हो कंसेप्ट, वो सब डिजाइन थिंकिंग नहीं है। आसपास जो दर्द है उसको महसूस कर लो अगर थोड़ा सा, और दिमाग लगाओ उसके अंदर कि वो दर्द पैदा हो क्यों रहा है, तो हम समझ जाएंगे। तो न्याय की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन घर में जो हम अन्याय करते हैं ना अपने घर के, उस अन्याय की चर्चा हम नहीं करेंगे अगर, तो हमारा समाज तो बदलेगा। देखिए, पहाड़ों के मकान की रचना और हमारे भोपाल के अंदर मकान की रचना में एक फर्क है। भोपाल में रसोई एक तरफ है, ड्राइंग रूम एक तरफ है। तो जब कोई आते हैं गेस्ट, तो ड्राइंग, आप मुझे क्षमा करेंगे पुरुष लोग, हम ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं, आपकी पत्नी श्रीमती जी बना रही हैं नाश्ता, अगर कोई नौकर नहीं है घर में तो वो चाय वाय बना रही हैं। अब चर्चा जो हो रही है उसमें वो शामिल नहीं है ना। लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में ठंड पड़ती है और गर्म कमरा एक ही होता है, वो रसोई होती है। वहां सब गेस्ट रसोई में आके बैठते हैं, हर चर्चा की भागीदार होती है। देखिए तो सही, एक ही समाज के अंदर, एक ही हिंदुस्तान के अंदर वो डिजाइन है हमारे पास जिसमें महिला कभी भी चर्चा से बाहर नहीं होगी। लेकिन हमने वो डिजाइन नहीं बनाया ना अपने घरों में, शहरों में, भोपाल में नहीं बनाया, बहनों को बाहर कर दिया चर्चा से। फिर कहते तुम सोचती तो हो नहीं, उनको मौका कहाँ मिलता है सोचने का। आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो खूब मंडूक है। अरे उनको जितना आपको चर्चा का मौका मिल रहा है, दुनिया की बातें जानने का मौका मिल रहा है, इतना मौका उनको भी दीजिए, वो आपसे ज्यादा वो बहस कर पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को, कैसी भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि बहस होनी चाहिए उस अन्याय के प्रति। एक दिन क्या हुआ, मेरी क्लास में एक बच्ची थी प्रज्ञा, अचानक क्लास छोटी चली गई। बड़ा अजीब लगा, पूछा भी नहीं, कटसी के नाते कह तो सकती थी सर मैं अभी आ रही हूँ। जब लौट के आकर फिर बैठ गई थोड़ी देर बाद, तो मैंने कहा प्रज्ञा क्या हुआ, मैं 3 घंटे की क्लास पढ़ाता हूँ, बीच में एक ब्रेक होता है, 2 सेशन एक साथ पढ़ाता हूँ। तो बोली सर मैं आपको ब्रेक के टाइम में बताऊँगी। तो ब्रेक में आई मेरे पास, बोली सर मेरा पीरियड शुरू हो गया अचानक, तो पैड लाई नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों, वॉशरूम में नहीं थे? बोले नहीं है सर। मुझे इतनी ग्लानि हुई, आए हिंदुस्तान और दुनिया की लीडिंग इंस्टीट्यूट है, मेरी पत्नी को भी पीरियड होते थे, हमारे घरों में सभी को होते होंगे, घरों में सबको पता है ये बात, लेकिन हमने लेडीज वॉशरूम में डिस्पेंसिंग मशीन नहीं लगवाई। 35-40 साल 35 साल। तो प्रज्ञा क्या करना चाहिए सर, लगनी चाहिए मशीन। तो लिखो मेल भेजो एक सीईओ को, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मेल भेजा। अगली क्लास में पूछा क्या हुआ सर, अभी तो जवाब नहीं आया। मैंने कहा दोबारा भेजो, आपकी बात कहूँ मुझे मार दो। किसी क्लास में पूछा आप क्या करोगी सर, हमें जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें भी करना चाहिए। मैंने कहा लिखो, मैंने कहा उस समय मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी, मुझे जानते थे। मैंने कहा ये लो उसका ईमेल, उसको लिखो। फिर और क्या होना चाहिए, रेलवे में ही होना चाहिए, सुरेश प्रभु से रेलवे मिनिस्टर थे, उनको भी लिखो, मैं देता हूँ उसके वर्क करना। अब ये बच्ची यहाँ बैठी बैठी देश की नीति बदल रही है। पहले तो आईएम की नीति बदली, अब देश की नीति बदल रही है। क्यों नहीं सक्षम कर सकते हम अपने विद्यार्थियों को? क्यों नहीं बदल सकते वो देश की नीति? किसने कहा है कि एक कक्षा का विद्यार्थी पहले ग्रेजुएट बनेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट बनेगा, फिर कहीं नौकरी करेगा, फिर कहीं जाकर कभी कंसल्टिंग करेगा किसी कंपनी में, और फिर वो कंपनी जाकर सलाह देगी सरकार को, और फिर सरकार अपनी नीतियां बनाएगी? ऐसा थोड़ी होता है। किसने कहा ये बात तरीका है? मैं नहीं मानता इस तरीके को। तो मतलब कि हम इतना सक्षम कर दें अपने विद्यार्थियों को कि वो क्लास में बैठे बैठे दूसरी नीति को बदलने की बात तो करें कम से कम।
क्यों नहीं कर सकते? कोशिश तो करें, नहीं बदलेगी तो कोई बात नहीं, कोशिश तो की, ये हताशा ना रहे दिल के अंदर कि मैंने कोशिश नहीं की। तो ये बहुत जरूरी है कि पैराडॉक्सिकल थिंकिंग, जो कंट्राडिक्शन जो है, विरोधाभास जो है हमारे समाज के, उसको ताकत कैसे बनाए। देखिए, जो कहते हैं कि जो उम्मीद है वो पैदा करना जरा मुश्किल है, निराशा पैदा करना बहुत आसान है। सिनिसिज्म इज इन्फेक्शियस, ऑप्टिमिज्म इज नॉट। निराशावादी एक व्यक्ति 10 को बना देगा निराशावादी, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति दूसरे को आशावादी बनाने में बहुत संघर्ष करता है। मेहनत पड़ती है ना, समाज में निराशा जरूरत से ज्यादा व्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। और खास तौर से जो एलीट है, जिनके पास साधन है, जो संपन्न है, जिनके पास पहुंच है, वो ज्यादा निराशावादी है। एक बार मैं 1992 से मैं मसूरी जाता रहा हूँ पढ़ाने के लिए, 2017-18 तक, जब युगांधर वहाँ के डायरेक्टर थे। मैंने एक स्पेशल इशू एडिट किया था, एडमिनिस्ट्रेटर उनकी एक पत्रिका है उसका, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन, 1992 में। उसके बाद दोबारा एडिशन नहीं आया उसका। कैन यू बिलीव इट? एक बार मुझे मौका मिला, सिविल सर्विस डे होता है ना 24 अप्रैल या क्या 21 अप्रैल, तो उस दिन मुझे बुलाया गया। मैं वहाँ का पृथ्वीराज, क्या नाम है जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर, उसके पब्लिक डिफेंस के, हाँ पृथ्वीराज चौहान, हाँ वो भी थे कैबिनेट सेक्रेटरी, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी देशमुख भी थे, जुगांधर भी थे। तो 80 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की। तो मैंने कहा भाई, वो लोग बैठे थे, मैंने कहा आपके पास एक फाइल तो होगी जो आपकी मिनिस्ट्री में पिछले साल में 10 अच्छे जो इनोवेशन हुए, जरा उसके बारे में बता दिए थोड़ा सा। किसी में फाइल नहीं। आप समझिए तो सही बात को मैं कह रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से रेलवे ने थोड़े समय पहले कुछ छोटे से चैलेंज अवार्ड दिए। वही प्लेटफॉर्म की हाइट बराबर नहीं होती है, जो ट्रेन आती है जब, तो लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है। रैंप नहीं होता है तो सामान चढ़ाने में महिला अगर अकेली जा रही है तो बहुत दिक्कत होती है। सामान चढ़ा के उसको आगे धक्का देना, फिर चढ़ना, बहुत टाइम लगता है, बहुत महंगा है, और कई बार टाइम ज़्यादा होता नहीं है। इन सब सवालों को उन्होंने उठाया। महात्मा गांधी ने 1929 में, 24 जुलाई 1929 में एक घोषणा की। उस घोषणा का बैकग्राउंड बता दूं, 1920 से लेकर 29 तक वो अलग अलग प्रयास करते रहे कि चरखे का डिजाइन बने, क्योंकि विनोबा भावे ने उनको बताया था कि एक दिन मेहनत करके चरखे से जो आमदनी होती है उससे गरीबी कभी उस महिला की दूर होगी नहीं। गांधी जी की चिंता हुई। अब वो चरखे में विश्वास तो करते थे, लेकिन चरखे से आमदनी इतनी ही नहीं हो रही है, तो उसका डिजाइन सुधारना पड़ेगा। तो उन्होंने बाउंड्री कंडीशन बनाए कि हल्का होना चाहिए, उसका सूत अच्छा होना चाहिए, 18 से 20 काउंट का होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, वगैरह। और 7,700 पाउंड का इनाम घोषित किया। ये शायद एशिया का पहला क्राउड सोर्सिंग कंपटीशन था। आप सोचे तो सही, 1929 की बात हो रही है, आज 2023 में है, कितने कंपटीशन है। 7,700 पाउंड यानी कि 1 लाख रुपया उस समय का, आज 10 करोड़ रुपया होगा। 1 करोड़ का भी तो दिखाइए कोई मुझे कंपटीशन, क्यों नहीं है? समस्याएं तो बहुत है। फिर सीखने में दिक्कत क्या है? लोगों से मांगने, लोगों से सुझाव लेने में दिक्कत क्या है भाई? हर क्षेत्र में दिक्कत है। कोविड के दौरान 60% घर ऐसे थे गरीबों के, खास तौर से, लेकिन आम जनता के, जिनके माँ बाप के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित रहे ना वो। सरकार का पूरा जोर तो ऑनलाइन एजुकेशन पे था। कुछ कहीं कहीं पर उन्होंने मटेरियल बांटा था, लेकिन जो बच्चे स्कूल में आकर नहीं सीख पा रहे, वो मटेरियल से तो क्या सीख पाएंगे। तो एक टीचर बाला यादव, जिसको हमने एचबीएन क्रिया अवार्ड दिया ज्ञान संस्था की तरफ से और हरिकी नेटवर्क से, वो बोला सर ऐसा है कि इनके पास फीचर फोन है। आप देखिए, समस्याओं को हल करने का जो तरीका है, वो तरीका तो हम सिखा सकते हैं ना अपने विद्यार्थियों को, हल नहीं बताना है, तरीका बताना है। तो बोला एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है फीचर फोन में, एक कॉन्फ्रेंस कॉल में 10 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। 40 बच्चों को पढ़ाना है मुझे, 4 कॉल करूंगा, आधा घंटे की, 2 घंटे में सारी क्लास को रोज पढ़ाऊंगा। कितना अच्छा समाधान है। मैंने राजीव को बताया,
ठीक है, उसमें अनिता करवल स्कूल एजुकेशन की सेक्रेटरी थी, उसको बताया उन्होंने, कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे उसका दुख है थोड़ा सा, लेकिन बहुत दुख भी नहीं है, क्योंकि कम से कम समाधान तो मिल गया, समाधान बहुत प्रचारित हो गया। अब जिसको करना है वो कर सकता है ना, लेकिन चाहे वो हमारे देश में ना हो तो अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में हो, कहीं भी कोई करे। मतलब कि ऐसे समाधान जो हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं, नीति निर्माता नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समाधानों में बच्चों से, बाकी लोगों से पूछने में, शिक्षकों से पूछने में शर्म क्यों, हिचकिचाहट क्यों? सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। होता क्या है कि हमारे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान बहुत है, भावना थोड़ी कम होती है और उसके क्रियान्वयन और भी कम होता है। सभी भावनाओं पर तो हम काम नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर सकता। भावनाएं बहुत आती हैं, हर भावना पर मैं एक्शन लेता हूँ, नहीं ले पाता, लेकिन कितना हो इसका आकार, कितना एक्यूट हो, कितना अनुपात हो जानकारी, भावना और एक्शन का, ये तय कर सकते हैं हम अपने लिए। हर व्यक्ति कर सकता है अपने लिए तय, हर संस्था कर सकती है अपने लिए, करना चाहिए, इसका अनुपात हमें देखना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, भाई आप ऐसा बताइए इस हॉल में कोई है जिसका अपलोड टू डाउनलोड रेशियो 1 से ज्यादा हो, बताइए कोई है? बात सवाल गलत है कि सही, पड़े बताइए। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आज विश्व गुरु कौन है? जो शेयर करता है ओपनली अपने कंटेंट को, जिसको हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वही गुरु है ना। तो पश्चिम के देश हैं, हम कैसे बनेंगे? हम अपने विचारों को तो शेयर नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि विचारों की कमी हमारे देश में, हमारे बच्चे जब वहां जाते हैं तो वहां जाके इतने मेधावी कैसे बन जाते हैं? वहां दबाव पड़ता है समाज का, समाज का दबाव पड़ता है, शिक्षक का दबाव पड़ता है, जो सिखाने वाले हैं उनका दबाव पड़ता है, उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। सारा जो गेम है, सारी जो इसकी जो कुंजी है वो यही है कि जो समाज अपने आप से अपेक्षाएं कम कर लेता है, वो समाज प्रगति करेगा कैसे? तो व्यक्ति कैसे प्रगति करेगा? अगर एक बात आप परिवर्तन करने की बात करें, मैं कहूँगा अपने आप से अपेक्षाएं को बढ़ाना। I must raise my expectation for myself first, for my colleagues, my students, my institution, and my institution should do the same thing. तभी जाकर वो ऊर्जा पैदा होगी जिसमें हम सब लोग लग जाएंगे इस बात के अंदर कि कैसे हम विकास करेंगे। तो ये संवेदना एक बड़ा सुंदर शब्द है, सभी भाषाओं में है देश की, हिंदी में भी है। सम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब किसी का दर्द उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है, तो वो उसका नहीं, मेरा। जब वो दर्द मेरा हो जाए तो फिर मैं अगर उसका समाधान सृजनात्मक रूप में करूंगा तो वो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ कम कर रहा हूं। और मन मेरा कैसे बन रहा है? स्वांतः है, सुखाय, अपनी खुशी के लिए। ये ऐसा मोटिवेशन है, ऐसा एक प्रेरक सिद्धांत है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी थकता नहीं व्यक्ति इसके अंदर। कभी दूसरों से अपेक्षा, दूसरों से तारीफ की अपेक्षा, दूसरों से इनाम की अपेक्षा, दूसरों से कोई पारितोषिक मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये अपेक्षा मन में आए ही नहीं। स्वांतः सुखाय इतना प्रबल प्रेरक है फॉर वंस ओन हैप्पीनेस। आई एम reducing my own pain for my own happiness. I am not doing any favor to anyone. I don't need any recognition for this. मेरी पीड़ा है, मुझे स्वयं कम करनी है। ये संवेदना का संचार हमारी शिक्षा के अंदर होना आवश्यक है, और उसको टालने से, उसको भूलने से तो काम चलेगा नहीं। तो हनीबी नेटवर्क ने क्या किया? 35 साल पहले जब हमने शुरू किया तो एक गुमनाम व्यक्ति है जिसको नेटवर्क ने सहारा दिया, उसको पहचान देते हैं। तो हम पहचान देते हैं, हम आवाज देते हैं, और हम रफ्तार देते हैं। वॉइस, विजिबिलिटी एंड वेलोसिटी, तीनों चीजें। राष्ट्रपति भवन में हमने उत्सव किए, बुलाया, 15 लोग रहे, 2-2 हफ्ते राष्ट्रपति के मेहमान बनकर। मैं कभी नहीं रहा, वो रहे, बच्चे रहे, विद्यार्थी रहे, गांव के लोग रहे। एक स्टैंडर्ड बनाया। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर
राष्ट्रपति देश के अपने घर में नव सदस्यों को मेहमान बना के रखे। हमारे देश में हो तो मतलब कि हम नए पैमाने तय, नए स्तर, नए मानक बना दें, नए स्टैंडर्ड्स क्रिएट करें, जिससे ये साबित हो कि हम लोग वाकई बहुत जल्दी प्रगति करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, धीर पड़ना होना थोड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा धैर्य से भी काम नहीं चलता है। तो जो संदर्भ से सार को बदलना है, when you change the context, the content changes। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीओपी आपने सुना होगा, बॉटम ऑफ पिरामिड। इससे ज्यादा आलसी बौद्धिक कंसेप्ट कोई हो नहीं सकता। क्यों? गरीब लोग सभी पिरामिड के बॉटम पर हैं क्या? नैतिकता के पिरामिड पर भी, सद्भावना के पिरामिड पर भी, सहयोग के, आपस के सहयोग में, सामुदायिक सहयोग की भावना में भी लोग सबसे नीचे हैं। शहरों के लोग ज्यादा सहयोग करते हैं शायद, जो संपन्न लोग हैं उनको तो पता भी नहीं होता पड़ोस में कौन रहता है। 20-20 साल हो जाते हैं घर में रहते हुए, पता नहीं चलता ऊपर कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, सही है ना? लेकिन वो है क्या टॉपर, या वो है जिसके घर में एक घर में मेहमान आता है तो सारे आस पड़ोस वाले कहीं से भी कुछ जरूरत पड़ती है तो फटाफट आ जाती है घर में चीज, मेहमान को पता भी नहीं चलता। तो मैंने कहा, मेरा दोस्त है उसने बुलाया मुझे गवर्नर से, मैंने कहा तेरी कॉन्फ्रेंस का नाम तेरे को बदलना पड़ेगा, नीचे बढ़ाना है, इसको BOEP करते, बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड। They are at the bottom of economic pyramid. They are not at the bottom of innovation pyramid. They are not at the bottom of ethical pyramid. They are not at the bottom of innovation pyramid. मतलब मेरा क्या है कि भाषा हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। Language shapes the habit of thought. जैसी भाषा हम इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी हमारी आदत हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि हम बहस करें। सिर्फ ऐसे किसी ने कोई कंसेप्ट यूज कर दिया, कोई बात कर ली, आपको याद होगा, आप मुझे जिसने मेरी पुरानी टॉक देखी 2009 की, मैंने उसमें ये सवाल उठाया था कि भाई अगर मैस्लो सही था तो कबीर और रहीम गलत थे। सही है? अब हम पढ़ाए जा रहे हैं मैस्लो की थ्योरी को कि जब तक पहले बेसिक नीड पूरी करो, फिर बाकी की नीड पूरी करो, तब जाकर एनलाइटमेंट मिलेगा। कबीर और रहीम, संत रविदास को तो जूते की मरम्मत करते करते एनलाइटमेंट मिल गया ना, तो फिर क्यों मैस्लो को पढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास कि हम कह सकें कि भाई ये गलत है थ्योरी? तो शिक्षा को परिवर्तन करना है, अगर हमें अध्यापक ऐसा पैदा करना है जिसमें वो बल हो कि सिद्धांतों के आधार पर मुझे प्रमाण चाहिए, प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं मैं। संत रविदास की आवश्यकता पूरी हो गई थी, कबीर की आवश्यकता पूरी हो गई थी, तो फिर वो कपड़े क्यों बुन रहा था? दो लाइन में उसने सारी बात कह दी अपनी। उस जैसा ज्ञानी तो कहां होगा कोई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। कितनी बड़ी बात कह गया। उसको हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, पहले तुम हथकरघे से पावर लूम पर आओ, पावर लूम से टेक्सटाइल मिल लगाओ, उसके बाद हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुमको अधिकार मिलेगा अपने जीवन के सत्य को पाने का। ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद तो वो भूल जाएगा, सत्य की खोज ही खत्म हो जाएगी इसकी। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम कंटेक्स्ट बदले, चर्चा का, विषय का, शिक्षा का, और सवाल, मौलिक सवाल उठाएं। हम सवाल उठाएं उन सिद्धांतों की जो हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। दो शब्द होते हैं, ऑटोनॉमी और एजेंसी। स्वतंत्रता निर्णय लेने की, उसको हम ऑटोनॉमी बोल देते हैं, स्वतंत्रता बोल देते हैं। एजेंसी यानी कि उस स्वतंत्रता का अधिकार को इस्तेमाल करने का अधिकार। बहुत से लोगों के पास स्वतंत्रता तो है, उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है, डरते हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करने से। अधिकार दिए हैं संविधान ने भी, और समाज ने भी, और संस्थाओं ने भी, और स्कूल के टीचर ने भी, प्रिंसिपल ने भी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी। नहीं कर पाते इस्तेमाल। क्यों नहीं कर पाते? अंदर से छोटे हैं, विकास नहीं हो पाया, कुंठित हो गई काया, मन उनका कुंठित रह गया। इसका एक प्रमाण है। ये फोटो कहां इस्तेमाल होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं? हमारे देश ने इस चित्र का प्रयोग किया इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन में। बाहर से
टूरिस्ट को बुलाने के लिए, आओ मेरे देश की शर्म देखो, आओ मेरे देश की शर्म देखो। बहुत सुंदर चित्र बोले, सुंदर है। गर्मी के अंदर कोई रेगिस्तान में चल रही है, घड़े का पानी लेकर, आपको सुंदरता दिख रही है उसमें। तो मतलब कि हम बदले संदर्भ, हम अपनी एस्थेटिक्स, मैं इसको बोलता हूँ अंग्रेजी में कहते हैं एस्थेटिक्स ऑफ एलिनेशन, जो हमारा अलगाव हो गया है सच्चाई के साथ में, उसका जो सौंदर्य का जो विकास का जो आधार है, जो उसकी थ्योरी जो है उसको चुनौती दीजिए। हम इसको सुंदर नहीं कह सकते। अब एक किताब है, ये किताब मैं पूछता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, गया हार्वर्ड में गया, सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, मैंने पूछा लोगों से, भाई इस किताब के बारे में जानते हो, इसके ऑथर कौन है, मदर एंड डॉटर्स ऑफ इन्वेंशन? एक हाथ खड़ा नहीं हुआ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड बुक इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। 200 साल का डेटा उसने दिया यूएस ऑफिस का। ऑटम स्टैनले ने अध्ययन किया, महिलाओं का हिस्सा 2% था सन 80 के दशक तक, उसके बाद में 8% हुआ, यानी कि मक्का जो है इनोवेशन की, वहाँ भी महिलाओं की जो आवाज़ है बड़ी धूमिल रही। बहुत सारे कारण दिए, लेकिन उसने साबित भी किया कि महिलाएं हर तरह का आविष्कार कर सकती हैं, कम्प्लेक्स डिज़ाइन, कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बना सकती हैं, बनाई है, कंप्यूटर की भाषाएं बनाई हैं, आपको पता है। 1898 में गोंडल में पद्मा सिंह जी हुए हैं, जा रहे थे रास्ते में तो देखा कि कुछ महिलाएं सिर पे बोझा उठाए हुए हैं, तो वजीर से पूछा, भाई ये थक जाती है तो क्या करती हैं? मिनिस्टर ने कहा, सर वो चलती रहती हैं। आप जानते हैं कि महिलाएं अगर बोझा नीचे रख दें तो अकेली नहीं उठा सकती, ना भी गिर जाती, कोई दूसरा महिला चाहिए साथ में हाथ लगाने को, साथ में हाथ लगाने को नहीं मिलती, कई बार अकेली जा रही है। तो उन्होंने एक एक मील पर विसामो बनवा दिए, ये शोल्डर आज भी मिल जाएंगे आपको गोंडल के अंदर। ये एक, आप थोड़ा झुक जाइए, बोझा वहाँ रख दीजिए, सांस ले लीजिए, सुस्ता लीजिए, जब थोड़ा फ्रेश हो जाए उसके बाद में फिर उठा लीजिए सिर पर, चलना शुरू कर दीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पीड़ा संवेदना से सृजनशीलता या उसके समाधान नहीं हुए देश में। 100 साल पहले तो हुआ था, अब नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। 200 साल पहले जापान में 1800 मेजी रिस्टोरेशन के बाद की बात है, मैं 2 उदाहरण और लूँगा, उसके बाद में अपनी बात रखूँगा। तो उन्होंने कहा, हम ऐसा करते हैं, जापान के लिए एक शिक्षा नीति बनाते हैं और 200 साल की शिक्षा नीति बनाते हैं। तो उन्होंने अलग अलग देशों में अपने लोगों को भेजा। उस समय तो पानी के जहाज थे, तो 1-1.5 साल लग गया तो उनको जाकर आने में। और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसकी समरी मेरे पास है, ए 200 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान फॉर एजुकेशन। नतीजा क्या हुआ? 1900 में एशिया का पहला देश बन गया जापान, जो पूरी तरह से शिक्षित था। दूरदर्शी स्वप्नों से बहुत ज़्यादा समय का जो दूर का काम है वो भी जल्दी हो जाता है। अगर हम सोचेंगे थोड़ा सा छोटा, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो क्या उपलब्ध है? इतना टाइम तो सोचने में समझने में लग जाता है। सरकार बदल जाती है, फिर नई सरकार आती है, फिर नई तरीके से सोचती है। तो थोड़ा सा दूरगामी हुन्नर महासागर, ये बहन थी गंगा बहन, 1898 में लिखती है किताब एक, 2018 रेसिपीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गांधी जी को प्रेरणा मिली उनसे 1905 में, ऐसा कहा जाता है। स्वदेशी की भावना उनके अंदर आई। हमने इस किताब को पुनर्प्रकाशित किया हिंदी में भी और गुजराती में। नरेंद्र भाई जब वहाँ थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने एक इनाम भी उनके नाम से रखा, दिया नहीं ज़्यादा, बाद में वो दिक्कत दूसरी बात समस्या है, लेकिन कोशिश तो की। तो मतलब हमारे देश में एक समय समय पर कोशिश हुई है कि जो तथाकथित बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या अच्छे तरीके हैं समाज के, उनको इकट्ठा किया जाए। हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत नया काम नहीं कर रहे। बिम्बे टेका की बात नहीं करूँगा, यहाँ आऊँगा तो बात अजीब लगेगी। आपके मध्य प्रदेश में पास में ही है गुफाएँ, जरा देखिए तो सही है अध्यापक क्या कर रहा है। कहता है, बच्चों मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मुझसे कह रहा है 25,000 साल पहले, क्योंकि आपको सीखना है ना। तो देखिए, पहले अगर आपको ह्यूमन फिगर बनानी है, पहले एक क्रॉस बनाओ, फिर दोनों को लाइन जोड़ो, लाइन जोड़ के बाद 2 लाइन और निकालो हाथों की, 2 लाइन निकालो पैरों की, एक सर्कल बनाओ। मुझे लग रहा है जैसे मुझे आज पढ़ा रहा है, नहीं? देखिए प्रमाण है आपका सामने। इफ इनोवेशन इज नॉट ओपन, इट इज नॉट परवेसिव। ये ओपन इनोवेशन तो हमारे जीन्स में है, 25,000 साल का इतिहास है।
तो 2000 साल की बात करता हूँ, 25,000 साल से 2000 पे 3 टीचर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो क्या हुआ कि टीचर ने कहा जाओ बच्चे एक गिलास पानी लाओ। बच्चा गिलास पानी दिया, पानी पिया, गिलास दे दिया उसको, वो जाकर गिलास रखाया, बुलाया, बोलो क्या हुआ? सर आपने पानी का गिलास मंगवाया, मैं लाया, आपने पिया, मैं रखा। नहीं नहीं, फिर से सोचो क्या हुआ। अध्यापक बार बार पूछ रहे हैं और विद्यार्थी वही बात दोहरा रहा है। फिर कहते नहीं अब मुझे याद आ गया क्या हुआ। बोलो क्या हुआ? सर आपने पानी का गिलास मंगवाया, आपने पानी पिया, आपने मुझे गिलास दिया, और जब मैं वापस जा रहा था तो उसमें एक बूंद पानी की मैंने जमीन पे छिड़क दी थी। मुझे वो किसी पौधे में या कहीं चिड़िया के पानी के बर्तन में प्राप्त थी, उसको जैन की प्राप्ति। बुद्ध जो है 2000 साल पहले बता रहे हैं जब पानी की कोई कमी नहीं थी, अगले 1900 साल तक पानी की कमी होने वाली नहीं थी, एक बूंद पानी का नहीं फेंक सकते आप। ये है दूरदर्शिता, ये हमारे संस्कार है। हमारी शिक्षा में ये बात क्यों नहीं आती? 2000 साल पहले उनको आभास हो गया कि एक जमाना आएगा जब पानी की बूंद के लिए तरसेगा ये समाज, अभी से उनको सिखाना शुरू कर दो। अच्छा टीचर तो वही है जो समाज को समस्या के आने से 1900 साल पहले, 1990 साल पहले से सिखा देता है कि भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अंतिम एक उदाहरण है जो 25 साल पहले की बात है। हम लोग एक फिल्म बना रहे थे, एक हीलर थे करीम भाई, वीरम गांव में, नॉर्थ गुजरात में। तो फोटोग्राफर जयंती भाई यहाँ बैठे हैं, एक चट्टान पे उसको बिठाया, एक चट्टान पे मैं बैठ गया, और थोड़ी देर कैमरा देखने के बाद बोले करीम भाई डंडी तोड़ के लाए हो सड़क के किनारे पौधे की, बोले इसको आप अपने हाथ में पकड़ लो। करीम भाई नाराज हो गए, मुझे लगा क्या बात हो गई, बोले इस डंडी की जरूरत थी हमको। तो कैमरामैन बोला कि भाई आपके हाथ में अच्छा लगेगा, आप पौधों की बात कर रहे हैं तो आप अच्छा बताएंगे। तो बोले मुझे कहते हैं ना पौधे के पास बैठ जाता है। अब मैंने बेवकूफ़ी भरा एक सवाल उठा दिया, मैंने कहा करीम भाई ये बताइए इतने सारे पौधे लगे हुए सड़क के किनारे, एक डंडी तोड़ ली तो क्या हो गया? बोले इतने सारे? प्रकृति में कभी भी कुछ भी इतना सारा नहीं, जो है जितना है उतना ही चाहिए। कितनी बड़ी बात है। मैं खड़ा होता था झाड़ी के पास, कभी पत्ते तोड़ लेता था, हाथ में मसल देता था, लॉन में बैठा हूँ तो घास का तिनका लेके मुंह में डालना चाहिए। अब मेरा हाथ जाता है तो सामने करीम भाई खड़े हो जाते हैं, इसकी जरूरत है। मतलब कि ऐसे अध्यापक हमारे समाज में हैं आज भी। आप ये ना समझें कि 25,000 साल पहले ही थे या 2000 साल पहले। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरणों को, इस तरह के ज्ञान को हमें क्लास में लाना पड़ेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। और अगर लाए, अगर तो नहीं लगाना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि हम सब लाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर क्यों लगाऊँ, मुझे तो विश्वास करना चाहिए कि लाएंगे। अगर हम उसको सफल हो जाते लाने, ऐसा डेटाबेस बन जाता है, ऐसी पेडागोजी बन जाती है, ऐसी नितांत अपेक्षाएं बन जाती हैं दूसरे से, तो शायद शिक्षा जो है वो और कुछ करे ना करे, हमें संवेदनशील कर्मशील बनाएगी, हमें सहयोग की भावना हमारे अंदर बढ़ाएगी और हमें सृजनशील बनाएगी। धन्यवाद।